السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ سب سے پہلے آؤ اس پروردگار وحدہ لا شریک لہ کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالی نے ہم کو انسان بنایا، اشرف المخلوقات میں سے بنایا۔ اللہ نے ہم کو توحید کی دولت دی۔ اللہ تعالی ہمارا جینا مرنا قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ رمضان کی عبادتیں، رمضان کے روزے، رمضان کے صدقہ اور خیرات اللہ تعالی ہم سے قبول فرمائے، اور شب قدر ہم کو نصیب فرما، آمین ثم آمین۔ آج الحمدللہ ہمارا 15واں پارہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ 15واں پارے میں ایک ایسا واقعہ ہے جو دوسری صورتوں میں نہیں ہے، اسی لیے جب ہم 15ویں پارے پر سے گزرے ضرور اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے شب معراج کے واقعے کو تازہ کرنا ضروری ہے۔ معراج کی رات صرف ایک سفر نہیں تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اگر غور سے دیکھیں، آنے والی پوری زندگی کے بڑے بڑے راز اس سفر میں، اس رات میں اللہ تعالی نے اپنے نبی کو بتا دیے تھے۔ صرف سفر نہیں دیکھنا ہے، وہ سفر میں چھپے راز تک ہم کو پہنچنا ہے انشاءاللہ۔ اور میں آپ کو آسان سے آسان لفظوں میں بس وہی راز بتاؤں گی جو آپ سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن معراج کے سفر کو سمجھنے سے پہلے ایک اور سفر کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ دونوں واقعات، یہ دونوں سفر ہجرت سے بس کچھ ہی دن پہلے پیش آئے تھے۔ آخر اللہ تعالیٰ یہ دو بڑے بڑے سفر کا ذکر کیوں کر رہا ہے نا؟ تو ابھی معراج کے سفر کو ایک طرف رکھو، اس سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت تکلیف دہ سفر ہے جس کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے۔ کیونکہ ایک مرتبہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے آپ کو نبی بنایا گیا کون سا دن، کون سا وقت سب سے زیادہ مشکل کا تھا آپ پہ؟ آپ کے لیے کون سا دن سب سے زیادہ مشکل والا دن تھا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ایک طائف کا سفر اور ایک احد کا دن۔ یہ حدیث آپ کو پوری طرح سے یاد رکھنا ہے۔ لیکچر کے تقریر کے آخری میں ایک بار پھر میں آپ کو یہ حدیث یاد دلاؤں گی کہ آخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف اور احد ایک ساتھ یہ دو دن کا ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کیا؟ ایسا کیا ہوا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار جب اما عائشہ نے پوچھا تو دو دو سفر، دو دو دن آپ نے یاد دلا دیے۔ طائف کا دن میرے لیے احد کے دن سے زیادہ سخت تھا۔ اس کا مطلب ہے احد کا دن بھی سخت تھا اور طائف کا دن بھی بڑا سخت تھا۔ اب میری ماں اور بہنوں، آؤ پہلے اس سفر کو دیکھ لیتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طائف کا سفر تھا۔ ایسا کیا ہے اس سفر میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
जिंदगी का सबसे मुश्किल दिन, सबसे मुश्किल सफर बताया है। आपको बताओ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा अबू तालिब का इंतकाल हो गया। एक एक लफ्ज, पूरी हिस्ट्री है आज का पूरा सूरा। कहीं पे सूरा आता है तो पूरा साइंस, कहीं पे आता है तो पूरी हिस्ट्री, कहीं पे आता है तो पूरे आगे आने वाले हालात, कहीं पे आता है तो जादू की एक साथ कई किस्में। जरा गौर से देखो, सूरे 15वें में छुपे हुए राज क्या क्या हैं जो अल्लाह ताला अपने बंदे को वार्निंग दे रहा है, खबरदार कर रहा है। अगर आपको ये सूरा समझ में आ जाता है, यकीन मानो आज जितनी जंगें चल रही हैं, चाहे वो ईरान की हो, इजराइल की हो, कुवैत की हो, दमाम की हो, खैबर की हो, सारी जंगें अमेरिका से लेके इजराइल तक, ईरान से लेके दुबई तक, सारी जंगें आपको समझ में आ जाएंगी। आखिर ये जंगें होती क्या हैं और क्यों लड़ी जाती हैं। अब ऐसा मत समझना कि जंगें वहां हो रही हैं, हमारा क्या लेना देना आपा, ऐसा नहीं है। जंग होती है, हर इंसान पर उसका इफेक्ट होता है। अभी थोड़े दिन के बाद ऐसे हालात होंगे, आपको पता है, अगर जंगें जल्दी नहीं रुकी, ना तुम मेरे घर पे आ सकते, ना मैं तुम्हारे घर पे जा सकती। ना पेट्रोल मिलेगा ही नहीं, महंगा तो छोड़ो, मिलेगा भी नहीं। ना बस, ना ट्रेन, ना कार, कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। और हो सकता ये लाइट भी ना रहे। ये जो हमको आजाद और बड़ी खुशहाल जिंदगी की आदत हो गई है ना, कि फैन के बगैर रहा नहीं जाता, गाड़ी के बगैर नहीं रहा जाता, मोबाइल के बगैर नहीं रहा जाता, ये दुनिया की सबसे बदतरीन जिंदगी आगे चल के ये मिलेगी। ये सारी चीजों से हम महरूम हो जाएंगे। वो वक्त आने से पहले हालात को अच्छी तरह से समझ लो और ये भी समझ लो कि अब आगे के लिए करना क्या है। अब वो वक्त नहीं है कि हम खाते पीते मस्त मगन और जमीन जायदाद जमा करते करते जिंदगी गुजारे। नहीं नहीं, अभी वक्त नहीं है। वक्त तो कल भी नहीं था, जंगे शुरू होने के बाद आज भी नहीं है। गलती से एक बम इधर गिर गया तो बोल भी नहीं सकते, वहां जंग हो रही है। नहीं, कहां की मुसीबत किस्मत खराब है तो ऊंट पे बैठे तो भी कुत्ता काटता। सोच भी नहीं सकते कहां से क्या हो जाता है, कहां से क्या हो जाता है। इसीलिए आने वाले हालात के बारे में अल्लाह ने कितनी तफसील के साथ बंदे को वार्निंग दी है। जरा कुरान खोलो तो सही। जब कुरान नहीं पढ़ेंगे हालात से लड़ना कैसे आएगा। चलो बम ना भी गिरे, बम ना भी गिरे, एक एक ब्रेड, एक एक किलो आटा इतना महंगा हो जाएगा ना, हम खा नहीं सकेंगे, खा नहीं सकेंगे। पैसा है, बैतुल्ला जा नहीं सकते इबादत के लिए, और जो गया वो वापस नहीं आ पा रहा है। हालात मजीद बिगड़ते जाएंगे। खैरात पहले देने के लिए नहीं, और हालात ऐसे कि दो तो कोई लेने वाला नहीं, कब क्या हो जाए नहीं मालूम। इसीलिए आओ आज ही से तौबा करके मौत के इंतजार में खड़े हो जाएं, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अब वो साल ऐसा था, अबू तालिब की वफात हो गई थी। अबू तालिब की वफात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक बहुत बड़ा गम था, बहुत बड़ा गम। सोचो, माँ चली गई, बाप चला गया, दादा चले गए, और मोहम्मद को दे दिया। अबू तालिब के परवरिश में वादा लिया था दादा ने जाते जाते, और ये वादा अबू तालिब ने आखिरी सांस तक निभाया था।
ये चाचा भतीजे का साथ कोई साल 2 साल 10-20 साल का नहीं था, पूरे 50 साल तक एक एक लम्हा, एक एक पल चाचा ने संभाला था भतीजे को। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली 40 साल में। अबू तालिब की वफात हो रही है उस वक्त जब अल्लाह के रसूल की उम्र 50 साल थी, और ये जो नबूवत के बाद मिलने के बाद के 10 साल है ना, वो तो इतने कठिन है कि बस क्या ही बताएं, क्या बताएं। हिम्मत नहीं थी किसी की अबू तालिब के होते हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जरा सा भी नुकसान पहुंचाए। और ऊपर से सबसे ज्यादा जान छिड़कने वाली सबसे महबूब बीवी खदीजा की भी वफात हो गई। दोनों के बारे में अलग अलग रिवायतें मिलती हैं। बाज रिवायतों के हिसाब से अबू तालिब के इंतकाल के 3 दिन के बाद खदीजा का इंतकाल हो गया, और बाज के हिसाब से 2 महीने के बाद हुआ। क्या फर्क पड़ता है 3 दिन या 2 महीने, आगे पीछे कुछ ही दिन में। अभी चाचा के गम से बाहर निकले नहीं थे। खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा जैसी जानिसार मोहब्बत करने वाली, कदम कदम पे अपने खजाने निछावर करने वाली बीवी का इंतकाल हो गया। और खदीजा का साथ कितना रहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में, पूरे 25 साल तक। 40 साल की थी खदीजा जब अल्लाह के रसूल से निकाह हुआ, शादी हुई। अब जब खदीजा की वफात हो रही है, 65 साल की है खदीजा, तो कितने साल साथ रहा दोनों का? पूरे 25 साल। सारी औलादे खदीजा से हैं, और जब तक खदीजा जिंदा रही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई दूसरी शादी भी नहीं की। 25 साल साथ रहने वाली, मोहब्बत करने वाली बीवी, और 50 साल से साथ रहने वाला चाचा, दोनों चले गए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से। जरा तसव्वुर करो एक इंसान पे क्या बीतती होगी। इसीलिए तारीख में ये साल गम का साल माना जाता है, गम का साल। इंतहाई गम था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, बहुत गमगीन, बहुत गमगीन, बहुत गमगीन। एक तो छोटे छोटे बच्चे थे, कोई देखने वाला नहीं, कुछ नहीं। बड़ी मुश्किल से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सौदा बिन्ते जमा, एक बेवा औरत थी। दोनों शौहर बीवी बड़े पुराने इन्होंने इस्लाम को कबूल किया था। शौहर का इंतकाल हो गया, बीवी बच गई थी। खदीजा के इंतकाल के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोटी छोटी बच्चों को देखने के लिए दूसरा निकाह किया सौदा से। सौदा दूसरी बीवी है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अब यहां पे देखो, कुफ्फार कुरैश जो अबू तालिब से कुछ कहने की, अबू तालिब की मौजूदगी में कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी मोहम्मद को। जैसे ही अबू तालिब की वफात हो गई, सारे लोग उठ के खड़े हो गए। सारे लोग इतना टॉर्चर, इतना जुल्म कर रहे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अगर होते सोच भी नहीं सकते थे। एक दिन तो हद कर दी इन लोगों ने। एक मक्का का पागल इंसान उठता है और खड़े होके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पे मिट्टी डाल देता है। बार बार के मिट्टी डाल दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर आए और मिट्टी पूरा चेहरे पे, पूरा सर पे। आपकी बेटी रोते जाती थी और सर से मिट्टी धोती जाती थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बेटी रो नहीं, तुम्हारा अल्लाह तुम्हारे अब्बा को अकेला नहीं छोड़ेगा। अल्लाह है तुम्हारे बाप के साथ, रो नहीं, रो नहीं।
तकलीफें सहते सहते, जुल्म बर्दाश्त करते करते अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोचते हैं कि रहना एक एक मिनट मुश्किल हो गया है शहर के अंदर। लाओ मैं दूसरे गांव जाऊं, बस्ती, शायद वो लोग मुझे रहने के लिए जगह दे दे। मक्का के लोग तो इस हद तक तंग कर रहे कि अब भी निकलो, अब भी निकलो, अब भी निकलो। तो 60 मील दूर एक ताइफ था, एक शहर था, मक्का से बस 60 मील दूर। ये 60 मील का सफर ना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाते हुए भी पैदल तय किया था, आते हुए भी पैदल तय किया था। इसके एक एक पॉइंट को ध्यान दो, नहीं तो आपको मेराज का सफर समझ में नहीं आएगा। मेराज का सफर समझाने के लिए ताइफ के सफर को मैं समझा रही हूं। जाते हुए भी पैदल, आते हुए भी पैदल, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बस अल्लाह के रसूल का एक आजाद करदा गुलाम ज़ैद बिन हारसा रजी अल्लाह तआला अन्हु साथ थे। ज़ैद बिन हारसा गए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ, यहां के सबसे बड़े सरदारों से मुलाकात की। ये सरदार कौन थे? बनो सकीफ के 3 सगे भाई सरदार थे। एक का नाम लैल, एक का नाम मसूद, एक का नाम हबीब था। तीनों भाई सरदार थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको इस्लाम की दावत दी। एक भाई उठ के कहता है, अल्लाह को और कोई नहीं मिला रसूल बनाने के लिए, तुमको रसूल बना के भेजा। नाउज़ बिल्लाह, बदतमीजी की इंतहा थी। रास्ते में भी जितने कबीले पढ़ते गए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर कबीले को इस्लाम की दावत देते जा रहे थे ताइफ तक, लेकिन एक ने भी इस्लाम को कबूल नहीं किया था। एक भाई उठ के कहता है, अगर तुम अल्लाह के नबी हो, अगर अल्लाह ने तुमको नबी बना के भेजा है, मैं खाने काबा का पर्दा ही फाड़ डालूंगा। अल्लाह अकबर, बदतमीजी देखो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठीक है, इस्लाम अगर तुम्हारी समझ में नहीं आता है ना मानो, लेकिन किसी के सामने मत कहना कि तुमने क्या बातें की हैं, मत बोलना। बड़ा दिल टूट गया, बड़ी उम्मीदें लेकर ताइफ का सफर किए थे और इतना दिल गम से फटा जा रहा था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। एक तो खदीजा की मौत, एक तो अबू तालिब की मौत, और दूसरा मक्का वाले बाहर निकालने पे तुले हुए हैं, और तीसरा यहाँ ताइफ के लोग लेने को तैयार नहीं है। 10 दिन, कितने दिन? 10 दिन तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ में ठहरे रहे। ये 1 दिन 2 दिन का सफर नहीं था। दिन रात रोज रोज उठते और ताइफ के सरदारों से मुलाकात करते और इस्लाम की दावत पेश करते, लेकिन कोई इस्लाम लाने को तैयार नहीं था। 10वें दिन तो ना हद हो गई। इन लोगों ने सारे ताइफ के गुंडों को जमा किया और 2 लाइन बना के खड़े हो गए, सारे ओबाश, सारे बदमाश, सारे गुंडे। और जहां अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते, कोई ताली पीटता, कोई गाली देता, कोई सीटी बजाता, ऐसे जैसे कोई मोहल्ले में पागल आता है और सारे बच्चे उसके पीछे लगते हैं। नबी की, अल्लाह के नबी की ये हालत कर रही है कौम, जरा देखो तो। सारी कौम तालियां पीट रही है, गालियां दे रही है, 2 लाइन बना के अल्लाह के रसूल के साथ साथ चल रहे हैं। बात यहां पे खत्म नहीं हुई, इन्होंने पत्थर लिए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरों पे मारना शुरू कर दी।
قدم اڑتا ایک پتھر پڑتا، قدم اڑتا پتھر پڑتا، اتنا مارا کہ جوتے مبارک میں خون بھر گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے زید بن حارثہ ڈھال بن رہے تھے، ادھر سے بچاتے ادھر سے پتھر آتا، ادھر سے بچاتے ادھر سے پتھر آتا۔ اللہ کے رسول کو بچاتے بچاتے زید بن حارثہ بھی شدید زخمی ہو گئے، سر پھٹ گیا۔ کیا ہو گیا؟ یہاں تو لوگ چپ چپ لڑتے ہیں، آؤ نا اسلام کے لیے لڑو۔ ہماری انرجی دیکھو کہاں جا رہی ہے، ہماری غنڈہ گردی دیکھو کہاں جا رہی ہے۔ زید بن حارثہ وہ پتھر کھائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے۔ اب 3 میل دور رہ گیا طائف کو چھوڑ کے 3 میل تک آگے آ گئے، لیکن لوگ پتھر مار مار کے پیچھے لگ گئے، نکلو ہمارے شہر سے، نکلو ہمارے شہر سے، نکلو ہمارے شہر سے۔ اللہ کیسی بے عزتی ہے یہ، اور یہ بے عزتی اسلام کے لیے ہے۔ کوئی غنڈہ گردی نہیں، کوئی موالی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، یہ بے عزتی اسلام کے لیے بے عزتی ہے۔ دیکھ لو وہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باغ دیکھا، وہ باغ ربیہ کا باغ تھا۔ ربیہ ایک خاندان کا نام ہے، قوم کا نام ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیالی رشتے دار لگتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باغ کے اندر گئے، وہ باغ 2 بھائی عتبہ اور شیبہ کا تھا۔ اندر گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب جب لوگوں نے دیکھا کہ محمد اور محمد کے ساتھ جو آدمی تھا زید بن حارثہ ایک باغ میں چلے گئے ہیں، بھیڑ واپس چلی گئی۔ اتنا درد، اتنا دکھ تھا قوم کی طرف سے بھی اور جسمانی بھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انگور کی ایک بیل کے سائے میں تھک کے بیٹھ گئے، ٹیکا لگا کے، آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ تکلیف اتنی زیادہ ہے، ہر زخم سے تکلیف ہے، جسم بھی زخموں سے چور چور، دل بھی زخموں سے چور چور۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا مانگی تھی، اور وہ دعائے مستضعفین کہلاتی ہے، کمزوروں کی دعا۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کمزور شاید کوئی نہیں تھا۔ کیا دعا تھی؟ اللہم الیک اشکو، میں اس کا اردو میں ترجمہ بتا دیتی ہوں، بہت بڑی دعا ہے۔ اے اللہ، میں میرا غم، میری تکلیف، میرا دکھ میں کس سے بیان کروں؟ تجھ سے بیان کر رہا ہوں۔ اے میرے رب، تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ ایک ایسا گمنام شہر جو میرے لیے اجنبی ہے، یا میرا دشمن کو تو نے میرا مالک بنا دیا، چاہے جیسے مجھے پتھر مارے، چاہے جیسے میرے ساتھ سلوک کرے، اے میرے رب تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ اے رب، تیری ہر تکلیف منظور ہے، بس ایک مقصد ہے کہ تو خوش ہو جا، تیری رضا مطلوب ہے۔ اللہ، اس تکلیف میں تو خوش ہوتا ہے، مجھے تکلیف ہوتی ہے، تیری تکلیف بھی مجھے منظور ہے میرے رب۔ یہ مستضعفین کی دعا ہے میری ماں اور بہنوں۔ جب آپ کو لگتا ہے آپ کمزور پڑ گئے ہیں، آپ کو لگتا ہے کوئی آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہے، آپ کو لگتا ہے سامنے والا طاقتور ہے، آپ کی بات نہیں سمجھ رہا ہے، آؤ یہ دعا پڑھ کے تو دیکھو۔ اللہ تعالیٰ نبیوں کے ذریعے دعائیں سکھا رہا ہے ہم کو قرآن کے اندر، یہ دعا پڑھ کے تو دیکھو۔ ایک بات بتاؤ، جب میں بھی آئی تھی نا بیجاپور، بڑا عجیب سا لگتا تھا، اجنبی شہر، اجنبی چہرے، اجنبی راستے،
نہ ایک کی لینگویج سمجھ میں آتی، نہ ایک کا چہرہ سمجھ میں آتا، نہ ایک سے بات کرنے آتا، کچھ نہیں، پتہ نہیں کون سی دنیا میں میں آ گئی تھی۔ پھر میں نے یہی دعا پڑھی تھی، اے میرے رب تو نے مجھے کس کے حوالے کیا؟ سچ میں اللہ جب تو نے مجھے یہاں حوالے کر ہی دیا ہے، پھر میرے دل میں ان کے لیے محبت پیدا کر، ان کے دل میں میرے لیے محبت پیدا کر۔ پھر دیکھو ہم جم گئے آج یہاں پہ۔ جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ کمزور پڑ گئے، ہاں سچ میں کمزور پڑ گئے، کوئی نہیں تھا یہاں، کوئی نہیں، آج بھی کوئی نہیں ہے میرا یہاں پہ سوائے آپ کے۔ جب آپ کو لگے کہ آپ کمزور پڑ گئے ہیں کہیں پہ، یہ دعا پڑھ کے تو دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس دل سے پکارا ہوگا اپنے رب کو، کس دل سے، اے میرے رب تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ ایسے ناقدروں کے جس کو میری کوئی قدر نہیں، وہ قوم کیسے کامیاب ہوگی، کیسے کامیاب ہوگی جو ایک نبی کو پتھر مارتی ہے، ایک نبی کو زخمی کرتی ہے، وہ قوم کیسے کامیاب ہوگی؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ تھے۔ جب دیکھا بنو ربیعہ نے ایک آدمی زخمی حالت میں یہاں پڑا ہے، دیکھا کون ہے؟ بولا محمد، اندر سے رشتہ داری جوش مارتی ہے، کچھ بھی ہو رشتہ دار تو تھے، جوش مارتی ہے۔ اپنے غلام کو بلایا، غلام کا نام تھا اداس، ادھر آؤ اداس، ایک گچھا انگور کا لو اور اس کو جا کے دے آؤ جو زخمی درخت کے نیچے بیٹھا ہے، لگتا ہے بیچارہ بھوکا بھی ہے، جاؤ دے آؤ۔ اداس غلام ایک کھجور کا گچھا لیتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے کے لیے آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ آگے بڑھایا اور بسم اللہ کہہ کے انگور منہ میں ڈالے۔ اداس چونک جاتا ہے، بسم اللہ، یہ الفاظ یہاں تو کوئی نہیں کہتا ہے، یہ الفاظ طائف کے نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کون ہو، کیا نام ہے تمہارا، کہاں سے ہو؟ اس نے کہا میرا نام اداس ہے، میں یہودی ہوں اور میں نینوا شہر کا رہنے والا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوہو نینوا، وہ تو یونس بن متا کا شہر ہے۔ میرے بھائی، میرے نبی، یونس کا نام سنتے ہی اداس چونک گیا، تم کیسے پہچانتے ہو یونس کو؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ انبیاء آپس میں بھائی بھائی ہوتے ہیں، یونس بھی نبی اللہ کے اور میں بھی اللہ کا نبی ہوں۔ یہ ہاتھ چومنے لگا، بوسہ دینے لگا، دور سے دیکھ رہے تھے عتبہ اور شیبہ، کہا اس آدمی نے ہمارے غلام کو بھی بگاڑ دیا۔ جب غلام واپس آیا تو غلام اداس نے کہا میرے آقا، میرے سردار، مان لو اس بات کو، پوری زمین کے اندر، پوری کائنات کے اندر اس سے بہترین کوئی انسان ہو نہیں سکتا، تم کھڑے ہو جاؤ اس انسان کا ساتھ دینے کے لیے۔ لیکن طائف کے لوگوں نے نہیں مانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے زید کے ساتھ، یہاں پہ قرن ثعالب ایک جگہ کا نام ہے پہاڑوں کے بیچ میں۔ جب اس جگہ تک پہنچے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب آگے چلا بھی نہیں جا رہا تھا، پیر زخموں سے چور چور ہے، تھک کے وہاں پہ پھر بیٹھ گئے۔ اتنے میں دیکھا آسمان پہ ایک بادل چھا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوپر نظر اٹھا کے دیکھتے ہیں تو کیا دیکھا؟ جبرائیل علیہ السلام اتنے قریب آ گئے ہیں۔ جبرائیل نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے اللہ کے رسول، یہ میرے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ ہے،
पहाड़ों के फरिश्ते ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम का जवाब दिया। जिब्राइल ने कहा, अल्लाह के रसूल अगर आप हुक्म दे तो आपका रब आपको पैगाम भेजता है कि सारी बस्ती को, सारे ताइफ को, जिन्होंने अपने नबी पे पत्थर बरसाए हैं, दो पहाड़ों के बीच में रख के दबा दे, दोनों पहाड़ों को कुचल दे, दोनों को पीस डाले दो पहाड़ों के बीच में। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं नहीं नहीं, मुझे यकीन है अगर ये नहीं तो इनके आने वाली औलाद कम से कम इस्लाम कबूल करेगी। अब यहाँ पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी तसल्ली हो गई कि मेरा रब मुझे अकेला नहीं छोड़ रहा है। ठीक है, पहाड़ों का फरिश्ता आया था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया भी था, लेकिन कम से कम इतनी तसल्ली तो हो गई कि मेरा रब मेरे साथ है। तसल्ली तो कल भी थी, आज और ज्यादा है। अब आगे बढ़े अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वादी नखला की तरफ। ये ताइफ का सफर है और वादी नखला में वही जिन्नात की जमात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान सुनती है और इस्लाम कबूल करती है, जिसका जिक्र अल्लाह ने कुरान में 2 जगह सूरे अहकाफ और सूरे जिन में बयान किया। और अल्लाह खुशखबरी देता है कि ऐ नबी, अगर इंसान आपकी बात को नहीं समझते हैं तो आओ, जिन्नात के लिए, जिन्नात के दिल के लिए अल्लाह ने हिदायत को खोल दिया, जिन्नात ने इस्लाम को कबूल किया है। अब थोड़ा थोड़ा तसल्ली हो रही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। मेरी माँ और बहनों, यहां से सफर एक और नया मोड़ लेता है ताइफ का, जिसमें हमारे लिए कई राज हैं, जरा गौर से देखो। ज़ैद बिन हारिसा कहते हैं, कोहे तूर पे पहुंचे, तूर पहाड़ तक, गारे हीरा, तूर वहीं पे, गारे हीरा तक, तूर नहीं गारे हीरा, सॉरी। ज़ैद बिन हारिसा कहते हैं, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मक्का के लोग आपको लेने को तैयार नहीं, इसीलिए तो हम बाहर गए थे। अब कैसे जाएंगे मक्का में ऐसी हालत में, जब इन्हें पता चलेगा ताइफ वालों ने भी कबूल नहीं किया है, वो तो और मारेंगे और मारेंगे। ना अबू तालिब है ना खदीजा है, आप कैसे जाएंगे मक्का के अंदर। ज़ैद बिन हारिसा की राय थी ये। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक काफिर था, अखनस बिन शुरैख इसका नाम था, अखनस बिन शुरैख को पैगाम भेजा कि मुझे पनाह दे दे, मैं मक्का के अंदर आना चाहता हूं। ये लोग पनाह देते थे, श्योरिटी देते थे, जमानत देते थे, जैसे आजकल पुलिस स्टेशन जाके जमानत दे के छुड़ा के लाते हैं किसी को। मक्का के दौर में मक्का के लोग इस तरीके को फॉलो करते थे। जरा गौर से देखो, कुछ भी नया नहीं है। पनाह दे दे, श्योरिटी दे दे, जमानत दे दे। लेकिन अखनस कहता है, मैं माज़िरत चाहता हूं, मैं नहीं दे सकता। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुहेल बिन अम्र को पैगाम भेजा कि वो पनाह दे दे। वही सुहेल बिन अम्र, कल जिसका जिक्र हमने तफसील से पढ़ा, जो अपने सगे बेटे अबू जुंदुल को जंजीरों की कैद में कैद करके रखा था। आपको क्या लगता है वो मोहम्मद को पनाह देगा, जिसका सगा बेटा उसके जुल्म से महफूज नहीं है। सुहेल बिन अम्र ने माज़िरत कर ली, नहीं दे सकता पनाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरे काफिर मुतइम को अल्लाह के रसूल ने पैगाम भेजा।
मुतइम बिन अदी नाम था। ए मुतइम मुझे पनाह दे, मैं अंदर आना चाहता हूँ मक्का के अंदर। अगर पनाह के साथ नहीं आते, जमानत के साथ नहीं आते, मक्का के लोग भी ऐसे ही मारते जैसे ताइफ के लोगों ने मारा अभी। मुतइम कहता है तैयार हो जाओ मक्का में आने के लिए मोहम्मद, मैं आ रहा हूं आपको लेने के लिए। मुतइम काफिर, लेकिन इसने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पनाह देने के लिए खड़ा हो गया। अपने कौम को लिया, अपने बेटों को लिया, अपने हथियार बांधा, जल्दी चलो हथियार बांध लो, मैंने मोहम्मद को पनाह दी है और उसको लेके मक्का में आना है। सारे बेटे इसके और सारी कौम गई। मुतइम ने ऐलान किया, सारे लोग खाने काबा के कोनों में खड़े हो जाओ, कोई मोहम्मद पे उंगली नहीं उठा सकता। मुतइम ने इसको पनाह दी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतइम की पनाह में मक्का के अंदर आते हैं। सीधे हजरे अस्वद के पास गए, हजरे अस्वद को चूमा, खाने काबा का तवाफ किया, 2 रकात नमाज पढ़ी। जब तक मुतइम की औलाद, मुतइम की कौम अल्लाह के रसूल को चारों तरफ से घेरे हुए है कि हमने इसको पनाह दी है, कोई हाथ नहीं लगा सकता। उसके बाद हिफाजत के साथ घर तक पहुंचाते हैं। अबू जहल खड़े होकर जोर से आवाज लगाता है, मुतइम क्या सिर्फ पनाह दे रहा है या तू मुसलमान हो गया है? क्या तूने इस्लाम भी कबूल किया है? क्या सिर्फ पनाह दे रहा है? मुतइम ने कहा, नहीं, इस्लाम कबूल नहीं किया, सिर्फ पनाह दे रहा हूं। अबू जहल ने खड़े होकर ऐलान किया, जिसको तुमने पनाह दी उसको हमने पनाह दी, अब आओ अंदर, मक्का के अंदर आ सकते हो। मुतइम की वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बार फिर एंट्री मिल गई, दाखिला मिल गया था मक्का के अंदर ताइफ के बाद। जरा ध्यान से देखना, जब जंगे बदर में कैदी लाए गए थे ना कुफारे मक्का के, उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़ा जबरदस्त जुमला कहा था, अगर मुतइम जिंदा होता और इन बदबूदार लोगों की सिफारिश करता, मैं मुतइम की खातिर सारे मक्का के कैदियों को छोड़ देता। जरा गौर करो एक एक लफ्ज पे, सारे मक्का के कैदियों को मैं रिहाई दे देता अगर मुतइम जिंदा होता और इनकी सिफारिश करता। मैं मुतइम के वो एहसान को कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं भूलूंगा, बोले अल्लाह के रसूल। मेरी मां और बहनों, जरा यहाँ पे गौर से देखो कुरान हमसे क्या कहता है। हम उस नबी की उम्मती हैं जो नबी कभी एहसान फरामोश नहीं था। एहसान फरामोशी, किसी को का एहसान भूल जाना हमारा मजहब कभी इसकी तालीम नहीं देता है, याद रखना। अगर कोई एक वक्त का खाना भी खिला दे ना, हमको दुआ सिखाई गई है, उसके दस्तरखान पे बैठ के दुआ देना, अल्लाह जिसने हमें खिलाया तो उसको खिला। किसी की दावत में गए, किसी का घर से तोहफा आया खाना, दुआ दे के खाओ, अल्लाह जिसने हमें खिलाया तो उसको खिला, जिसने हमें पिलाया तो उसको पिला। क्यों? इस्लाम तालीम दे रहा है अगर मुतइम जिंदा होता मैं उसके एहसान को कभी नहीं भूला। हम वो मजहब को मानने वाले हैं, हम वो इस्लाम को मानने वाले हैं जिस मजहब इस्लाम में एहसान करने की, एहसान को याद रखने की तालीमात सबसे बड़ा अखलाक है। इसीलिए ना माँ बाप का इतना बड़ा एहसान है। क्या करे ऐसा माँ बाप, बोलती औलाद, ऐसा क्या करे माँ बाप? माँ बाप और औलाद वो रिश्ता है
जिसका कभी कोई मुकाबला नहीं हो सकता, कभी कोई मुकाबला नहीं। माँ बाप ने उस वक्त खिलाया था जब तू खाने के लायक नहीं था। माँ ने उस वक्त तेरे पैम्पर, तेरी फाली बदली थी जब तू हाथ से धोने के लायक नहीं था। बाप ने उस वक्त उंगली पकड़ के चलना सिखाया जब तू चलने के लायक नहीं था। और बड़ा हो के कहता है ऐसा क्या किए माँ बाप। माँ बाप का औलाद के साथ कोई मुकाबला नहीं है एहसान के मामले में। माँ बाप का एहसान है तो है, एहसान मानना है तो है। एहसान की तालीम जरा रुको यहाँ पे। कुरान हमसे 15वें पारे में क्या कहना चाह रहा है, क्यों एहसान का जिक्र अल्लाह ताला इतना लंबा कर रहा है। एक बार बस मुतीम ने श्योरिटी दी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी जिंदगी मुतीम के एहसान को याद करते रहे। माँ बाप के एहसान को कैसे नहीं याद करेंगे। उस्ताद का शागिर्द से कोई मुकाबला नहीं, याद रखना। उस्ताद उस्ताद होता है, शागिर्द शागिर्द होता है। कुछ रिश्तों में ना कोई मुकाबला नहीं होता है, कोई पे बैक नहीं होता है, कोई रिटर्न नहीं होता है, उसकी कोई कीमत नहीं होती है उस एहसान को चुकाने की, ना माँ बाप की, ना उस्ताद और शागिर्द की। ये भी वो रिश्ता है, खास करके वो उस्ताद जिससे तुमने अल्लाह को पहचानना सीखा, जिसने तुमने अल्लाह की किताब को सीखा, अल्लाह के रसूल की हदीसों को सीखा। उस उस्ताद को तुम कोई रिटर्न नहीं दे सकते, कोई मुकाबला नहीं है उस्ताद और शागिर्द का, याद रखना। घटिया लोग हैं जो उस्ताद से मुकाबला लगा लेते हैं, घटिया लोग हैं जो माँ बाप से मुकाबला लगा लेते हैं। एहसान फरामोश कुरान इनको ही कहता है। एक मर्तबा क्या होता है बताओ, सिकंदर आजम दुनिया का सबसे बड़ा फातेह, उस्ताद और शागिर्द कहीं पे जा रहे थे। रास्ते में एक नदी बह रही थी। अब दोनों रुक गए, नहीं मालूम था नदी में कितना पानी है। सिकंदर और सिकंदर के साथ सिकंदर का उस्ताद अरस्तु था। अरस्तु तारीख का बहुत बड़ा फिलॉसफर है। ये अगर आप पढ़े लिखे हैं आपको जगह जगह अरस्तु पढ़ने को मिलेगा। अरस्तु सिकंदर कहता है उस्ताद मोहतरम आप रुक जाएं, पहले मैं आगे आगे जाऊंगा, पीछे पीछे तुम आना। उस्ताद कहता है ठीक है। आगे आगे स्टूडेंट समंदर में, नदी में, और पीछे पीछे उस्ताद। जब नदी पार हो गई तो उस्ताद ने कहा क्या ये उस्ताद की बेअदबी नहीं थी कि तुम उस्ताद के आगे आगे चल रहे थे नदी में। देखो कैसे पूछ रहा है, ये उस्ताद की बेअदबी थी कि तुम नदी में ही सही लेकिन उस्ताद के आगे आगे चल रहे थे। उस वक्त जो सिकंदर ने जवाब दिया, आज भी तारीख में वो जवाब रोशन लफ्जों में लिखा हुआ है। सिकंदर ने कहा उस्ताद मोहतरम अगर एक अरस्तु मर जाता है, डूब जाता है, तो हजारों सिकंदर डूब जाते हैं, लेकिन अगर एक उस्ताद, एक अरस्तु जिंदा रहता है तो वो हजारों सिकंदर को पैदा कर सकता है। लेकिन हजारों सिकंदर मिलके एक अरस्तु को पैदा नहीं कर सकते। हजारों शागिर्द मिलके एक उस्ताद को नहीं बना सकते, लेकिन एक उस्ताद अगर जिंदा है तो वो हजारों शागिर्द को पैदा कर सकता है। अल्लाहु अकबर। ये उस्ताद का मकाम है जिसका कोई रिटर्न नहीं है, जिसका कोई कीमत नहीं है। और इस्लाम हमको एहसान करना सिखा रहा है। याद रखो उस्ताद और शागिर्द के बीच कोई मुकाबला होता ही नहीं है, होना ही नहीं चाहिए।
तीसरे नंबर पे शौहर और बीवी का कोई मुकाबला नहीं। ये भी वो रिश्ता है ना, एहसानों तले दबा हुआ, इस रिश्ते में भी कोई मुकाबला नहीं होता है। शौहर शौहर होता है, वो अपने से पहले बीवी के मुंह में निवाला डालता है, उसका एहसान तो देखो। अपने से महंगे कपड़े बीवी को पहनाता है, जो जहां रहता है वहां बीवी को महारानी बना के रखता है। शौहर का एहसान भी ऐसा है, बीवी सारी जिंदगी उसकी खिदमत करे, कोई पे बैक नहीं कर सकती, कोई कीमत उसको अदा नहीं कर सकती। हाँ, कुछ रिश्ते बता रही हूं मैं 15वें पारे की रोशनी में, जिनकी कोई कीमत आप जिंदगी में अदा नहीं कर सकते, ना माँ बाप की, ना उस्ताद की, ना शौहर की। और एक और रिश्ता बता के मैं आगे बढ़ूं, बहन भाई की। ये भी वो अनमोल रिश्ते होते हैं, इन रिश्तों में भी कोई मुकाबला नहीं हो सकता, याद रखना, ये खून के रिश्ते हैं। आप जानते हैं, जो बहन या जो भाई सबसे पहले मरता है ना, वो किसी की नमाजे जनाजा में शरीक नहीं हो सकता, किसी की नमाजे जनाजा नहीं पढ़ सकता, वो तो मर गया सबसे पहले। और जो बहन या भाई सबसे आखिरी में मरता है ना, उसकी नमाजे जनाजा में कोई बहन भाई शरीक नहीं हो सकते। आज जो बहन भाई मिले हैं, उनकी कदर करो, नाराजगियां खत्म कर दो। ये हमारे खून के वो रिश्ते हैं, इसमें एहसानात गिनाए नहीं जा सकते, इसमें एहसान फरामोशी की कोई गुंजाइश नहीं है। कौन सी बहन ने कौन सी बहन के लिए कितना किया, कौन से भाई ने कौन से भाई के लिए कितना किया, कोई तोल मोल नहीं है इन रिश्तों के अंदर, ना माँ बाप के रिश्तों के अंदर, ना उस्ताद और शागिर्द के रिश्तों के अंदर, ना बहन भाइयों के रिश्तों के अंदर, ना शौहर बीवी के रिश्तों के अंदर। ये वो रिश्ते, ये वो अनमोल तोहफे हमारे रब ने हमको दिया है। और अल्लाह कहता है, एहसान कर, एहसान कर, एहसान कर। मेरी माँ और बहनों, जब माँ बाप नहीं रहते हैं ना, बहन भाई हमारा खानदान, हमारी पहचान, माँ बाप के बाद सब खत्म हो जाता है। अब बस बहन भाई एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलते रहते हैं। इनसे क्या नाराजगी, इनसे क्या बेगानगी, इनसे कौन सा मुकाबला, इन पे एहसानात को याद रखो। बोला अल्लाह ताला, तू एहसान गिनाने मत जा, जो उन्होंने एहसान किया था उसको याद रख। अल्लाह हमें इसकी तौफीक अता फरमा। हाँ, पता नहीं कल के दिन कौन पहले नंबर पे मर जाए और पता नहीं कौन आखिरी में मर जाए। पहले मर जाओ तो भी मुसीबत है, किसी के जनाजे में शरीक नहीं रह सकते, और आखिर में मर जाओ तो भी मुसीबत है, कोई बाकी नहीं बचा बहन भाई हमारे जनाजा पढ़ने के लिए। अल्लाह अकबर, ये बड़ा अनमोल रिश्ता है, इसकी कदर करो, इसकी कदर करो। आगे अल्लाह ताला कहता है, अब यहां पे देखो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतइम के एहसान को कभी नहीं भूला, कभी नहीं भूला। यहां से शुरू होता है हमारा मेराज का सफर। ये ताइफ का सफर मैंने आपके सामने तफसील से रखा। अब आओ, मैं आपके सामने जितनी बातें मेराज की रखूंगी, जरा ध्यान से सीरियल नंबर से याद रखना, तो आपको इसके राज समझ में आएंगे, नहीं तो ये राज हमारी समझ में नहीं आएंगे। एक मर्तबा ना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने काबा में आंख लग गई, हरम के अंदर देखा 3 आदमी आए हैं। दरअसल वो फरिश्ते थे। एक सरहाने खड़ा हो गया, एक पाइटे खड़ा हो गया, एक बीच में खड़ा हो गया। एक ने दूसरे से कहा, ये कौन है? तो दूसरे वाले ने कहा, ये दुनिया के सबसे बेहतरीन इंसान है। तो दूसरे वाले ने कहा, फिर ले चलो ना, ले चलो। बस इसके बाद अल्लाह के रसूल की आंख खुल गई। पहले दिन को ख्वाब इतना ही था।
दूसरे दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ठीक उसी जगह पे आंख लगती है। अब फरिश्ते आए, बात नहीं की, नहीं कोई बात नहीं, सीधे उठाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और जमजम के कुएं के पास ले गए। यहां से लेके यहां तक, गले से लेके पूरा मैदे तक ऐसे चीर दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना मुबारक। अंदर से दिल, अतड़ियां, सारी चीजें निकाली और उसको जमजम के पानी से अच्छी तरह से धोया। एक वाकया हुआ था बचपन में, याद है ना, आपको बताया गया। ये नबूवत के 10वें साल मेराज हो रही है, याद रखो। ताइफ के फौरन बाद मेराज का वाकया है और मेराज के फौरन बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत का हुक्म दे दिया गया है। जरा और से देखते चलना, पूरा अंदर पेट का सामान निकाला गया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अच्छी तरह से उसको धो दिया गया। फिर जन्नत से एक तश्त लाया गया सोने का, उसमें सफेद सफेद चमकती हुई चीज थी जिसको हिकमत कहते हैं। जिब्राइल ने अच्छी तरह से उसको पेट के अंदर, गले के अंदर भर दिया और फिर से सी दिया। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक सफेद बुर्राख लाई गई मेरे पास। ये वाकया खुद हम अल्लाह के रसूल के मुंह से सुनेंगे। चलो, एक सफेद बुर्राख, बुर्राक एक सवारी है जिस पर नबी सवारी करते आए। गधे से थोड़ा बड़ी और खच्चर से थोड़ा छोटी सफेद बुर्राक थी। और जिब्राइल ने मुझे हुक्म दिया, ऐ नबी इस पे आज सवार हो जाइए। मैं इस पे सवार हो गया। एक कदम इसका यहाँ तो एक कदम वहां, जहां तक नजर जाती है, इतनी दूर, इतनी दूर जहां तक नजर जाती है। सोचो ये कैसा सफर था होगा। रास्ते में एक बहुत खूबसूरत औरत मिलती है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अब यहाँ पे देखो, रास्ते में बड़े अजीब और गरीब वाक़ियात भी हुए थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। ये सफर सीधे आसमान की तरफ नहीं था, ये बैतुल मक़दिस की तरफ था। आज आप समझ जाओ कि बैतुल मक़दिस जो मस्जिद अक्सा फलस्तीन में है, उसकी क्यों आखिर मुसलमानों को इतनी अहमियत है, ये इसका जिक्र अल्लाह ताला ने 15वें पारे में कर दिया है। रास्ते में एक बड़ी खूबसूरत औरत बाहें फैलाए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैंने इसकी तरफ नहीं देखा और आगे बढ़ गया। जिब्राइल कहते हैं, ऐ अल्लाह के रसूल, अगर ये आप इसकी तरफ देखते, आपकी सारी उम्मत दुनियादार बन जाती। जानते हो, ये दुनिया थी, ये दुनिया थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आगे बढ़ते हैं, देखा एक बहुत बड़ा जिन हाथ में अंगार लिए हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पीछा कर रहा है। हजरत जिब्राइल ने एक दुआ सिखाई अल्लाह के रसूल को। जैसे ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ पढ़ी, जिन वहीं पे नीचे की तरफ गिर गया। जानते हो, ये शैतान हर कदम पे आपको रोकेगा। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने 2 बर्तन पेश किए गए, एक में शराब थी, एक में दूध था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध पीना पसंद किया, शराब से बड़ी घिन महसूस की, नफरत महसूस की।
तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया, आपने फितरत को पसंद किया, आपकी उम्मत फितरत पे रहेगी। और भी कई छोटे मोटे वाकयात होते रहे रास्ते में, यहाँ तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जिब्राइल बैतुल मक़दिस तक पहुंच गए। एक बड़ी सी चट्टान थी वहां पे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने वो बुर्राक उस चट्टान से बांध दिया और कहा कि तमाम नबियों की सवारियां यहीं पे बांधी गई हैं, आज आप भी बांध दीजिए। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर जाते हैं, देखा बैतुल मक़दिस खचाखच नमाजियों से भरी हुई थी। इतने नमाजी, इतने नमाजी, इतने नमाजी, बस इनको इमाम का इंतजार था। एक जगह बस इमाम की खाली रह गई थी, सारी मस्जिद भरी हुई थी। इमाम के आने का इंतजार था बस। जिब्राइल ने मेरा हाथ पकड़ा और इमाम की जगह पे खड़ा कर दिया। फिर मैंने तमाम लोगों को नमाज पढ़ाई। जिब्राइल ने पूछा, जानते हो ऐ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किन लोगों ने आपके पीछे नमाज अदा की? कौन लोग हैं जो आपके पीछे नमाज पढ़े हैं? कहा कौन? कहा तमाम अंबिया की आपने इमामत करवाई है। तमाम अंबिया थे, इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इमामुल अंबिया कहा जाता है। इमामुल अंबिया। यहूदियों को फॉलो करते हो, नसरानियों को फॉलो करते हो, मुसलमानों अपने मकाम को पहचानो। हम वो उम्मती हैं जिनके नबी ने सारे नबियों की इमामत करवाई है, सारे नबियों की इमामत करवाई है। अब यहां से एक एक बात पे नोट करते चलो। यहां से शुरू होता है मेराज का सफर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरे सामने ऐसी सीढ़ी लाई गई, ऐसी मेराज लाई गई। मेराज सीढ़ी को कहते हैं, तमाम दुनिया वालों ने कभी इससे खूबसूरत कोई चीज नहीं देखी होगी। ये वही मेराज है, ये वही सीढ़ी है जिससे बनी आदम की रूहें आसमान की तरफ चढ़ती हैं। हम भी देखेंगे उस सीढ़ी को, लेकिन वो जिंदगी का आखिरी दीदार होगा, आखिरी पल होगा, याद रखना। इसके बाद तो आंखें कुछ देखने के लायक भी नहीं रहेंगी। इंसान बनी आदम ने जिंदगी में इससे खूबसूरत कोई चीज नहीं देखी होगी। वो सीढ़ी लाई गई जिससे रूहें ऊपर चढ़ती है। न जाने वो सीढ़ी कैसी होगी मेरी बहनों। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्राइल के साथ जा रहे हैं पहले आसमान की तरफ। पहले आसमान का दरवाजा खटखटाया गया। अंदर से इस्माइल की आवाज आती है जो पहले आसमान पे है। इस्माइल ने पूछा, कौन है? जिब्राइल ने कहा, मैं जिब्राइल। इस्माइल ने पूछा, ये आपके साथ कौन है? तो जिब्राइल ने कहा, ये मेरे साथ मोहम्मद हैं। क्या इनको बुलाया गया है? हाँ, इनको बुलाया गया है। फिर जिब्राइल इस्माइल को बताते हैं, इस्माइल के साथ 12,000 फरिश्ते और हैं जो आसमान का पहला दरवाजा खोलने पे मामूर हैं। 12,000 फरिश्ते मिलके आसमान का एक दरवाजा खोल सकते हैं, याद रखो। किसी इंसान के अंदर इतनी ताकत है क्या? पता भी है फरिश्तों को कौन आया है, लेकिन कानून देखो कितना सख्त फॉलो करते हैं फरिश्ते। जब पहले आसमान पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, वहां पे पहले आसमान पे मुलाकात हुई आदम अलैहिस्सलाम से। पहले आसमान पे किससे मुलाकात हुई? ये याद रखना बोली मैं, कौन से आसमान पे कौन है जरा याद रखो, मुझे लास्ट में बता देना। औरत कुछ याद नहीं रख सकती, क्या याद रख सकती?
صرف اس کو اپنے برتن یاد رہتے جو بازو والے کے پاس گئے. مرتی ہوئی عورت کو بھی پوچھو نا کہ بازو والوں کے پاس کون سا برتن گیا تھا, ان اٹھ کے جواب دیں گی وہ کٹورا وہاں گیا. ذرا غور سے دیکھتے چلو کون سے اس پہ کون سے نبی ہیں. پہلے آسمان پہ کون ہے؟ آدم علیہ السلام ہے. آدم علیہ السلام کے پاس کچھ لوگ گزر رہے تھے جن کو دیکھ دیکھ کے آدم علیہ السلام مسکرا رہے تھے اور فرشتوں سے کہہ رہے تھے ان کو علیین میں رکھ دو, یہ میرے نیک اولادیں ہیں, یہ میرے نیک بچے ہیں. علیین جہاں پر نیک لوگوں کی روحیں رکھی جاتی ہیں. کچھ لوگوں کو دیکھ رہے تھے آدم علیہ السلام جن کو دیکھ دیکھ کے رو رہے تھے, لے جاؤ ان کو سجین کے اندر. سجین وہ جگہ ہے جہاں بدکار لوگوں کی روحیں رکھی جاتی ہیں. آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. آدم علیہ السلام نے کہا میرے نیک بیٹے مرحبا مرحبا تمہارے لیے, خوش آمدید تمہارے لیے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اور جبرائیل دوسرے آسمان کی طرف پڑھے, دوسرے آسمان کی طرف. یہاں پہ ہم نے یحییٰ اور موسیٰ دو نبیوں سے ملاقات کی. کس سے ملاقات کی دوسرے آسمان پہ؟ یحییٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام. یہی تو راز چھپے ہیں, ذرا غور سے دیکھنا. معراج کا سفر صرف ایک سفر نہیں تھا, یہ نبوت کی دلیل تھی. یہ آنے والے سارے حالات کا اللہ تعالی اشارہ دے رہا تھا. دوسرے آسمان پہ ملاقات ہوتی ہے یحییٰ اور موسیٰ علیہ السلام سے. یہ دونوں خلیرے بھائی بھی ہیں, آگے سورہ مریم میں آئے گا آپ کو. دونوں سگے خالازاد بھائی ہیں یحییٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام. انہوں نے کہا مرحبا مرحبا, خوش آمدید نیک بھائی کے لیے. جو نسل سے ہے وہ بیٹا کہے گا اور جو نسل سے نہیں ہے وہ بھائی کہے گا. غور کرنا, آدم نے کہا مرحبا بیٹے, لیکن یحییٰ اور موسیٰ کہہ رہے ہیں میرے بھائی مرحبا. ابراہیم علیہ السلام کہیں گے بیٹا, آدم کہیں گے بیٹا, اور سارے نبی کہیں گے بھائی بھائی بھائی. اب تیسرے آسمان کی طرف بڑھے. تیسرے آسمان پہ ملاقات ہوتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت یوسف علیہ السلام سے. چہرہ تھا کہ چاند کی طرح چمک رہا تھا. اتنی خوبصورتی کبھی نہیں کسی نے دیکھی ہوگی. یوسف علیہ السلام نے کہا مرحبا اہلاً و سہلاً و مرحبا, خوش آمدید, سلام کیا, مبارکبادی دی. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے چوتھے آسمان کی طرف. صرف مختصر سے مختصر بیان کرنے کی کوشش کروں گی. یہاں پہ جنت اور جہنم بھی دکھائی گئی تھی, لیکن وہ کسی اور دن کے لیے ہم رکھیں گے. پہلے آسمانوں کی سیر تو کر لے. چوتھے آسمان پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوتی ہے حضرت ادریس علیہ السلام سے. کس سے ملاقات ہوئی؟ ادریس علیہ السلام سے. ادریس علیہ السلام نے کہا مرحبا نیک بھائی, خوش آمدید. پھر پانچویں آسمان کی طرف پڑھتے ہیں. پانچویں آسمان پہ ملاقات ہوتی ہے ہارون علیہ السلام سے. ہارون نے کہا بھائی نیک بھائی, خوش آمدید, مرحبا مرحبا. پھر چھٹویں آسمان کی طرف پڑھتے ہیں. چھٹویں آسمان پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوتی ہے موسیٰ علیہ السلام سے. کس سے؟ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا مرحبا مرحبا, اہلاً و سہلاً, السلام علیکم. پھر آگے بڑھے ساتویں آسمان کی طرف. ساتویں آسمان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا
वहां एक खाना काबा बना हुआ है जिसका नाम बैत मामूर है। एक ऐसा पुरनूर चेहरे वाला शख्स बैत मामूर से टेक लगाए बैठा है जिसकी शक्ल बिल्कुल मेरे ही जैसे थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, कहा मरहबा मेरे बेटे। जिब्राइल से पूछा ये कौन है? तो जिब्राइल ने कहा ये आपके बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम है। और बताओ, बहुत सारे बच्चे वहां पे खेल रहे थे और इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनको देख देख के खुश हो रहे थे, उन बच्चों को देख के। सातवें आसमान पे जो खाने काबा है बैत मामूर, हर दिन रोजाना 70,000 फरिश्ते अंदर दाखिल होते हैं, फिर कभी इनकी अंदर जाने की दोबारा बारी नहीं आती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म होता है अंदर जाइए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बैत मामूर में अंदर कदम रखते हैं, देखा बड़ा हैरान करने वाला मंजर के फरिश्ते इबादत में मसरूफ हैं, लेकिन अजीब इबादत है। जो खड़ा है वो खड़ा है, जो रुकू में है वो रुकू में है, जो सजदे में है वो सजदे में है। कोई हिलता नहीं है, कोई हटता नहीं है। वक्त जैसे थाम गया है, जो जहां है वहीं पे स्टैचू बना हुआ है। कुछ ऐसे सफेद सफेद कपड़े पहने वाले लोग थे, मुझे हुक्म दिया गया आप इन लोगों के साथ 2 रकात नमाज अदा कीजिए। मैं बैत मामूर में इन लोगों के साथ 2 रकात नमाज अदा किया, फिर वहां से बाहर आ गया। ये 7वें आसमान की बात है। ये फिर इसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते हैं 7वें आसमान पे इतनी तस्बीहात गूंज रही थी। गौर किया, सारी तस्बीहात फरिश्तों की थी जो बैत मामूर से आवाज आ रही थी। अब आगे देखो, एक दरख्त था 7वें आसमान पे, इसकी जड़ें 6वें आसमान पे थी, इसकी शाखें 7वें आसमान पे थी। जरा एक एक लफ्ज पे गौर करो। ये कोई मामूली दरख्त नहीं था जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7वें आसमान पे देख रहे हैं। ये 6ठे आसमान से शुरू होता है तो 7वें आसमान में इसकी शाखें नजर आ रही थी, जड़ें 6वें आसमान पे थी। और मैं आपको बता दूं एक बार, ये जो पहला आसमान ये दिखता है ना हमको, ये सबसे छोटा आसमान है। दूसरे आसमान के मुकाबले में पहला आसमान ऐसा है जैसे मानो एक बड़ी सहरा में, एक बड़े से थाल में बस एक छल्ला पड़ा हुआ है। दूसरा आसमान उससे बड़ा, तीसरा आसमान उससे बड़ा, और एक आसमान से दूसरे आसमान तक गैप, बीच का फासला उतना ही है जितना जमीन से लेके आसमान तक है। अल्लाहु अकबर! क्या हमारी छोटी सी अक्ल तसव्वुर कर सकती है? 6ठे आसमान में जिस दरख्त की जड़ें और 7वें आसमान पे इसकी शाखें, जरा गौर करो ये दरख्त कैसा होगा। जिब्राइल ने कहा ये सिदरतुल मुंतहा है। यही तो है सिदरतुल मुंतहा, इसके आगे किसी की इजाजत नहीं है। एक एक पत्ते ना सिदरतुल मुंतहा के मानो हाथी के बड़े बड़े कान के जैसे थे, सुनहरी और बड़े बड़े। एक पत्ता इतना बड़ा जो पूरी दुनिया को ढक ले, पूरी उम्मत को ढक ले। सुनहरी परवाने
उस दरख्त पे आ के बैठ रहे थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जितनी मर्तबा ये दरख्त हिल रहा था उतनी मर्तबा अपने रंग बदल रहा था, अपने कलर बदल रहा था। और मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता कि वो आखिर कौन से कलर रहे थे, कौन से कलर थे। उसके कलर सिदरतुल मुंतहा हर वक्त कलर बदल रहे हैं, हर वक्त उस पे सोने के परवानों जैसे फरिश्ते बैठे इबादत में मसरूफ है। नहीं मालूम वो कौन से कलर थे, जरा गौर से तो देखो। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिब्राइल कहते हैं अल्लाह के रसूल ये हमारी आखिरी हद है, जो नीचे से आता है वो यहीं से ले लिया जाता है और जो नीचे वालों को देना होता है यहीं से दे दिया जाता है। इसके बाद आगे का सफर आपको अकेले तय करना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फिर मेरे पास एक रफ लाई गई। अब वो रफ क्या है नहीं मालूम, बस इतना मालूम कि वो डार्क ग्रीन कलर की गहरे सब्ज रंग की कोई कालीन जैसी चीज होगी, जिसको अल्लाह ने कुरान में बयान किया है अला रफ रफिन कुजरिन अबकरियिन हिसान, सूरह रहमान के अंदर। मोमिन को भी उस पे बिठाया जाएगा। ये कौन सी रफ है जो सातवें आसमान से आगे जा रही है? ये कौन सी सवारी है नहीं मालूम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसके ऊपर बिठाया गया। आगे का सफर अब आप अकेले तय कीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रफ पे बैठते हैं। आगे गए, गहरे बादल छा गए, गहरे बादल, कुछ दिखाई नहीं देता था। उसके बाद एक पर्दा हाइल हो गया। वो इतना खूबसूरत पर्दे थे, मैंने जिंदगी में ऐसे पर्दे फिर कभी नहीं देखे, फिर कभी नहीं देखे। यहां तक कि वो रफ भी एक पर्दा बन के खड़ी हो गई। फिर अल्लाह ने मुझ पर जो वही नाजिल करना था वो वही नाजिल की। अल्लाह ने मुझे 50 वक्त की नमाजें दी, जो कम होते होते 5 वक्त की रह गई। इसके बाद सूरह बकरा की आखिरी की 2 आयतें भी उसी वक्त अल्लाह ताला ने अपने नबी को दी थी। तोहफा था, ये मेराज का तोहफा था। और वहां से बताऊं, ऐसी सरसराहट सुनाई दे रही थी, अजीब सी सरसराहट। ये सरसराहट या तो चैन चलने की आवाज थी या फिर कलम चलने की आवाज थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था ये कैसी आवाजें हैं, समझ नहीं पाया। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस लाया गया मक्का की तरफ। जब मक्का आ रहे थे ना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रास्ते में देखा एक काफिला जा रहा था। इनका एक ऊंट गुम हो गया था और काफिले वाले मक्का के ऊंट को ढूंढ रहे थे। ऊंट ने देखा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, बिदक गया, ठोकर लगी ऊंट को, लंगड़ा हो गया ऊंट। और उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिले वालों को सलाम भी किया। काफिले वालों ने कहा वैसे लगता है कि मोहम्मद ने सलाम किया है, लेकिन मोहम्मद कहां आएगा, चलो आगे चलते हैं। जब आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में वापस, दुनिया थम चुकी थी। 7 जमीन 7 आसमान के सफर के बाद अभी रात भी बाकी थी। अभी वजू का पानी बह रहा था जो अल्लाह के रसूल वजू करके गए थे। घर के दरवाजे की कुंडी हिल रही थी जो कुंडी लगा के गए थे। इतना भी वक्त नहीं बीता था और 7 आसमान की सैर खत्म हो गई थी। सबसे पहला जो शख्स मिला वो था अबू जहल। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उदास देखा
کیونکہ سمجھ گئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری قوم کبھی نہیں مانے گی، میں ساتوں آسمان کو دیکھ کے آ رہا ہوں۔ ابو جہل نے پوچھا کیا پھر کوئی نئی بات ہو گئی ہے؟ تو اس نے کہا ہاں میں ساتوں آسمان کی سیر کر کے آ رہا ہوں۔ لوگوں نے وہی تالیاں بجائی، وہی سیٹیاں بجائی، وہی ہنسنے لگے جو طائف پہ ابھی ابھی ہنس رہے تھے۔ ایک بار پھر ویسا ہی منظر تھا جو طائف والوں نے مذاق اڑایا تھا، جو طائف والوں نے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ساری نشانیاں آپ کو بتا سکتا ہوں۔ ابھی مکہ میں ایک قافلہ اندر آئے گا، پہلا اونٹ جو اندر داخل ہوگا سب سے آگے والا کالا کپڑا اس کے اوپر ہے، کالی کالی بوریاں رکھی ہوئی ہیں اور تھوڑا سا لنگڑا کے چل رہا ہے۔ سارے مکہ کے لوگ دیکھنے میں لگ گئے، دیکھتے ہیں کون سا قافلہ اندر آتا ہے، واقعی ایسا اونٹ آتا ہے کیا؟ اور سچ میں آیا وہی قافلہ، وہی قافلہ۔ بہرحال جس کو ماننا تھا مانا، جس کو نہیں ماننا تھا نہیں مانا۔ آؤ اب راز سنتے جاؤ کہ آخر کیا پیغام دینا چاہتا تھا اللہ تعالی۔ پہلے آسمان پہ کس سے ملاقات ہوئی تھی؟ آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پہلے آسمان پہ ملایا، اس سے یہ پیغام تھا، ایک چھپا کوڈ ورڈ تھا اللہ کے رسول کے لیے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے آدم کو جنت چھوڑ کے زمین پہ آنا پڑا، زمین پہ محنت کرنی پڑی، زمین پہ مشقت کرنی پڑی، زمین پہ دنیا آباد کرنی پڑی، اب اس کے بعد آپ کو بھی ایک نئے شہر جانا ہے، ایک نئی دنیا بسانی ہے، ایک نیا گھر آباد کرنا ہے۔ اسی لیے دیکھو جیسے ہی معراج ہوئی، پہلے کچھ ہی دن کے بعد پہلا خواب پورا ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا چھوڑ دو مکہ، مکہ چھوڑ دو، ہجرت کرو مدینہ کی طرف۔ ویسے ہی جیسے آدم ہجرت کیے تھے جنت سے دنیا کی طرف، ہجرت کا حکم چھپا ہوا تھا۔ دوسرے آسمان پہ کس سے ملاقات ہوئی تھی؟ عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی۔ ڈائریکٹ چوتھے آسمان پہ پہنچ گئے، دوسرا تیسرا چھوڑ دیے کیا؟ ادریس کس نے بولا؟ عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام۔ اس میں ایک پیغام چھپا ہوا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ مدینہ کے ہجرت کے دوسرے سال آپ کے ساتھ ویسے ہی قتل کی سازشیں کی جائیں گی جیسے یحییٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازشیں کی گئی تھی۔ اتنی سازشیں رچی مدینہ کے یہودیوں نے اللہ کے رسول کو قتل کرنے کی، جیسے یحییٰ کے لیے قتل کا پروگرام بنایا جاتا تھا۔ کبھی چکی کا پاٹ گرانے کی کوشش ہے۔ ایک یہودیہ عورت آئی تھی اللہ کے رسول کے پاس، باقاعدہ پوچھ کے جاتی ہے اے اللہ کے رسول آپ کو گوشت میں کیا پسند ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ران بڑی پسند ہے۔ ران بنائی، اس نے خوب سارا زہر بھر دیا اور اللہ کے پیش کیا اللہ کے رسول کو۔ بس ایک نوالا کھائے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی تکلیف ساری زندگی اللہ کے رسول کو ہوتی رہی، خاص کر کے موت کے قریب تو بہت تڑپتے رہے، بہت تڑپتے رہے۔ یہ قتل کی سازشیں یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ جیسی سازشیں ہوئی، اور جیسے اللہ نے عیسیٰ کو بچا لیا تھا، اے نبی میرا وعدہ ہے میں آپ کو بھی موت سے بچا لوں گا، یہ عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام تھا۔ یحییٰ جیسی سازشیں تو ہوں گی لیکن آپ کو بچایا جائے گا عیسیٰ کے جیسا۔
یہ اللہ کا کوڈ چھپا ہوا پیغام تھا. میں نے آپ سے کہا تھا اتنے ہی سیکریٹس بتاؤں گی جتنے آپ سمجھ سکتے ہیں، گہرائی کے ساتھ سمجھ نہیں سکتے. اس کے لیے قرآن کی ایک ایک آیت کو اسٹڈی کرنا پڑے گا. پھر تیسرے آسمان پہ کس سے ملاقات ہوئی تھی؟ یوسف علیہ السلام سے. یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی. یہ پیغام تھا. ہجرت کا تیسرا سال، یاد کرو، جنگ احد ہوئی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی گڑھے میں گرے تھے میدان جنگ میں جیسے یوسف کو یوسف کے بھائیوں نے کنویں میں پھینکا تھا. ابو عامر فاسق اس کے مشورے سے میدان احد میں جگہ جگہ گڑھے کھودے گئے تھے کہ گر جائیں مسلمان، اور ایک گڑھے میں گرے بھی تھے اور اتنا ہی زخمی ہوئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنا کہ یوسف جب کنویں میں گرے تھے تو زخمی ہوئے تھے. 2 دانت ٹوٹ گئے تھے اللہ کے رسول کے، پیشانی زخمی ہو گئی تھی، پہلو پہ مار لگ گیا تھا. یعنی تم کو بڑی تکلیف پہنچے گی، زخم پہنچیں گے تم کو. یہ پیغام تھا اللہ کی طرف سے. تیسرے آسمان پہ یوسف کی ملاقات. چوتھے آسمان پہ کس سے ملاقات ہوئی تھی؟ ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی. چوتھے آسمان پہ ادریس علیہ السلام دنیا کے وہ پہلے نبی ہیں جن کو اللہ تعالی نے لکھنا سکھایا. آج سے پہلے جتنے بھی انبیاء دنیا میں آئے ان کو تختیاں دی جاتی تھی پڑھنے کے لیے. ادریس علیہ السلام یہ پہلے نبی ہیں جنہوں نے اپنی دعوت کا کام لکھ کے کیا. لکھنا اللہ نے ان کو سکھایا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ پیغام تھا، یہ کوڈ ورڈ تھا. ہجرت کے چوتھے سال آپ بادشاہوں کی طرف اور دوسری قوموں کی طرف توحید کا پیغام، توحید کی دعوت لکھ کے بھیجیں گے. لکھا جائے گا آپ کے خطوط کو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو لکھا خط لکھ کے اسلام کی دعوتیں پہنچائی. کچھ لوگوں نے مانا اور کچھ لوگوں نے نہیں مانا. ہم نے سنا ایران کے بادشاہ نے اتنے ٹکڑے کیے تھے خط کے، یاد ہے نا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہ جتنے ٹکڑے اس نے میرے خط کے کیے تو اس کی مملکت کے، اس کی بادشاہت کے بھی اتنے ہی ٹکڑے کرنا. یاد ہے چھٹے پارے کی تفسیر میں ہم نے سنا تھا. یہ پیغام لکھو گے تم اب دعوت. پانچویں آسمان پہ ملاقات ہوتی ہے کس سے؟ ہارون علیہ السلام سے. ہارون اپنے قوم کے بہت عزیز، بہت فیوریٹ، بہت ہیرو نبی تھے اپنے قوم کے. موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا میں جا رہا ہوں کوہ طور توریت لینے کے لیے، ہارون میرے پیچھے میری قوم کا خیال رکھنا. لیکن قوم بچڑے کی عبادت میں لگ گئی. یاد آیا ماشاءاللہ سامری جادوگر نے ان کے لیے پچھڑا بنایا تھا. کافی پڑھے لکھے ہو گئے تم تو. سب یاد ہے، سوتے بھی سب یاد ہے. ہم تو معراج بھی سوتے کر کے آ جاتے ہیں. آج تو خواب میں بھی معراج ہی دکھائی دے گی انشاءاللہ. تو یہاں پہ قوم نے بچڑا بنا لیا اور پوجا شروع کر دی. پھر اللہ کی طرف سے حکم آیا توبہ اس وقت قبول نہیں جب تک کہ تم ان کو قتل نہ کرو گے. اب یہاں پہ جب ہجرت کا 5واں سال آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بنو نذیر نے بھی، بنو قینقاع نے بھی، بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع، یہ یہودیوں کے ایسے بڑے بڑے قبیلے تھے، انہوں نے اپنے سارے عہد توڑ دیے اور اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر یہودیوں کو قتل کرنے کا حکم جاری کر دیا ہجرت کے 5ویں سال. کب ہوا تھا یہ؟
हिजरत के 5वें साल हुआ था। आगे आ रहा है आपको सूरह हश्र के अंदर तफसीर। अल्लाह के रसूल हिजरत के 5वें साल आप भी ऐसे ही यहूदियों का कत्ल करोगे जैसे हारून और मूसा के जमाने में कत्ल होता रहा है। 6वें आसमान पर किससे मुलाकात होती है? मूसा अलैहिस्सलाम से। वो मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल की बार बार की अहद शिकनी से बार बार ये वादा तोड़ती, इतना परेशान हो गए थे मूसा अलैहिस्सलाम, और अल्लाह ताला से दुआ की। अल्लाह ताला ने इनको दर बदर भटकने पर मजबूर कर दिया। 40 साल तक बनी इसराइल यहूदी भटकते रहे। यहाँ पे पैगाम था, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक बार फिर तुम खैबर के यहूदियों को मदीना से बाहर निकालोगे। खैबर के यहूदी ऐसे ही भटकते रहेंगे जैसे कभी मूसा के जमाने में भटकते रहे। और सेम देखो, हिजरत का 6वां साल था जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर के यहूदियों को भटकने के लिए मजबूर कर दिया, निकाल के बाहर कर दिया गया मदीना से। 7वें आसमान पे चलो। 7वें आसमान पे कौन है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। कुछ ज्यादा ही देर होते जा रही, लेकिन मैं माफी चाहती हूँ, बात कंप्लीट होना बहुत जरूरी है। कल तो अलग ही कुरान के राज आपके सामने पेश होंगे। 5 मिनट और दे दो बस। इब्राहीम अलैहिस्सलाम, आपको याद है मैंने कहा था फरिश्ते रुकू में है कुछ तो रुकू में है, सजदे में है तो सजदे में है। यहाँ पे इस बात का इशारा था, ऐ नबी आप खाना काबा तक पहुंचेंगे लेकिन रोक दिए जाओगे, वहां पे कोई उम्रा नहीं होगा। और ठीक हिजरत के 7वें साल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया खाना काबा चलना है। 1400 सहाबा चले लेकिन रोक दिए गए, कोई उम्रा नहीं हुआ। जहां थे वहीं पे एहराम खोला और वापस आ गए। 8वें नंबर पे 7वें आसमान पे सिदरतुल मुंतहा को देखा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। ये ऐलान था इस बात का, अब बस इंतहा खत्म हो गई, खत्म। अब 8वें साल आप रब से दीदार करेंगे, आपकी मुलाकात रब से होगी। और देख लो हिजरत के सिर्फ 8वें साल पूरा मक्का फतह हो गया, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसको सिर्फ 1 साल पहले मक्का के लोगों ने मक्का में आने की इजाजत नहीं दी थी, सिर्फ 1 साल आसन 8 हिजरी में फातिहाना अंदर दाखिल हो रहे हैं एक जीते हुए सिपाही की हैसियत से। अब सारा मक्का तुम्हारा हो गया, रब से मुलाकात का वक्त आ गया। सन 10 हिजरी में हज का हुक्म नासिल होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बस वो आखिरी हज किया था, हज के 3 महीने बीत गए थे, उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो गई थी। अल्लाह ताला यहाँ पे दो वो इशारे दे रहा है कि एक हज भी करोगे, दूसरा रफ पे बैठ के अपने रब से मुलाकात भी करोगे और वफात भी हो जाएगी। ये मेराज की रात है ना, आने वाली पूरी हिजरत के कोड वर्ड इसमें बताए गए थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। मेरी माँ और बहनों, इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नमाज मोमिन की मेराज है। तू रख सर जमीन पे, अल्लाह तेरी शान इतनी बुलंद करेगा मानो तुझे आसमानों तक अल्लाह पहुंचाएगा। आसमानों तक जाने की जरूरत नहीं है, तू मेरे बंदे जमीन पे सर रख सजदे में, तेरा रब तुझे आसमानों से आगे इज्जत अता फरमाएगा। ये पैगाम है इस शबे मेराज का, ये पैगाम है।
जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत से पहले ये जो दो सफर थे, एक ताइफ का सफर, एक मेराज का सफर, ये कभी नहीं भूलना, कभी नहीं भूलना। ये दोनों सफर आगे पीछे हो रहे हैं। इसके बाद अल्लाह ताला ने हुक्म दिया अपने नबी को हिजरत का। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह हमें सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा हाँ जी, ये मुसलमान बड़ा परेशान है। कतर है, कुवैत है, दुबई है, जहाँ पे भी मुसलमान फंसे हुए हैं, अल्लाह उन मुसलमानों की मदद फरमा। जो रिश्तेदार हैं तुम्हारे, अगर कुछ मदद कर सकते हो, माली मदद, कोई तो उनका एहसान याद रखो जो कभी उन्होंने किया होगा। आज हमने यही तो सुना, बहन भाई का एहसान नहीं लेता है कोई, ये नहीं है ना, शौहर बीवी, कोई इसकी कीमत नहीं इस एहसान की, ना उस्ताद शागिर्द के, ना माँ बाप के। कुछ कर सकते हो इन मुसलमानों के लिए जो आपके रिश्तेदार हैं, फंसे हुए हैं, जरूर कुछ कर सकते हो तो इनके लिए करो। और अच्छा चलो कुछ नहीं कर सकते हो, आओ हम इनके लिए दुआ करें कि अल्लाह इनकी मुश्किलों को आसान कर दे। हम सब इनके लिए दुआ करते हैं। जितने मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, अल्लाह मजलूम की मदद फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। और जितने बे औलाद हैं, अल्लाह उनको औलाद अता फरमा। ये देखो इतनी लंबी लिस्ट है औलाद की, कहाँ से नाम पढ़ेंगे। अल्लाह जो बीमार है उन्हें सेहत अता फरमा। अल्लाह जो बेरोजगार है उन्हें रोजी रोटी नसीब फरमा। अल्लाह हमारी इबादतों को, हमारे सदका और खैरात को, हमारी नेकियों को, हमारे जीने मरने को अल्लाह कबूल फरमा। अल्लाह जितनी जिंदगी बची है, हम उठ खड़े हुए हैं इस्लाम के लिए, अल्लाह हमारा खड़ा होना कबूल फरमा। अल्लाह हमारा थकना कबूल फरमा। अल्लाह हमारी छोटी छोटी कोशिशें कबूल फरमा। हम तेरी छोटी सी हकीर सी बंदे हैं अल्लाह, तेरे फरिश्तों के आगे हमारी क्या हैसियत, तेरे नबियों के सामने हमारी क्या हैसियत, तेरे मर्द मोमिन के सामने हमारी क्या हैसियत। लेकिन रब्बुल आलमीन हम तेरी मगफिरत चाहते हैं। अल्लाह तू हमारे अगले पिछले जाने अनजाने छोटे बड़े तमाम गुनाहों को माफ फरमा। अल्लाह हम मगफिरत की उम्मीद रखते हैं, रब तू हमें माफ फरमा। तू हमें एहसान मानने वालों में से बना, एहसान फरामोश लोगों में से अल्लाह तू हमें ना बना। हमें तौफीक अता फरमा, हम हुकूकुल इबाद को ऐ रब अच्छे से अदा कर सके। अल्लाह तू हमसे हमारा उठना बैठना कबूल फरमा, हमारा जमा होना कबूल फरमा, हमारा सुनना और कहना कबूल फरमा। ऐ रब हमारे दिलों को हिदायत के लिए खोल दे, नेक पक्की सच्ची नमाजी बंदी हमको बना। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका नस्तगफिरुका